Hello everyone, I'm Abuzar and I'll be taking your Science and Technology of PT365 of Science and Technology. And first I'll be dealing with IT and computers. Okay. So the foremost thing I wanted to tell you is this, that whenever you are going through any book, be it your course book, be it anything you read, first go through the table of content. Alright. When you go through the table of content, you will have a macroscopic view of what things will come in your way. What are you going to read? So that would give a better understanding of the content itself. All right, so we will cover this IT and computer, and these are the topics you can go through. First, just a brief, this national geospatial policy we read, then we'll read about data policy, we'll read about 5G technologies, satellite communication, AI, and so on. So these are the topics that will come your way in this lecture. Okay, so without wasting any time, let's start with IT and computer section so that we could cover up, since a very little time has remains for your PT, for your prelims test. So we should not waste further time and let's get started with this national geospatial policy of Government of India. So before reading any policy of Government of India or anything, you should know the what is the actual technology, why this policy has been brought up. So as new technologies like the geospatial technology came up, so government felt the requirement to bring a national geospatial policy. So what is this geospatial technology? UPSC would ask question around geospatial technology most of the time. Rather than asking question on national geospatial policy, UPSC would try to find out, do you know geospatial technology? So what is geospatial technology? First thing in geospatial technology comes is geospatial data. So what is that geospatial data? It is if any object or any event is associated with its location on earth or this thing. Okay, if it is associated with location on earth, see, there are some latitude, some longitude points. Okay, there are some descriptive information about the location of an object. If we associate that object with the location on the earth, then it becomes a geospatial data. If for instance there is a chair kept in your room, if we associate that chair's data with its location on earth, then that data of that chair would become geospatial data. Otherwise it is just normal data that there is a chair kept. So it was very crude example of geospatial data. So what are the uses of geospatial technology? All right, first of all I would like to tell you that whenever UPSC asks application or UPSC asks about uses or advantages of any technology, in most of the situations, in 9 out of 10 situations, the answer is option D. All right, answer is option D. Why is it so? Because the applications are so broad based, so wide, that you cannot reject any of the above options in the statement, in the question, sorry. All right, so if you do not know the answer exactly, try to mark option D, because most of the times UPSC puts the answer as D. This is by, I'm telling this by observation of around 10 years of previous year question papers in science and technology. When UPSC asks application, for instance UPSC has asked application about artificial intelligence, about drone, about other technologies, wireless technology. So most of the cases the option, the correct option is answer option D. Okay, so let's study about uses of spatial technology, geospatial technology. So we can use geospatial technology for this positioning system. All right, the spatial analytics, when we do the cloud computing, it requires geospatial technology. Okay, navigation purposes, for navigation purpose, as we are saying, the surveying of data, say surveying of land purpose, government uses surveys. For that positioning is required. Private entities use surveying for their organization, for their research purposes, there it is required. For earth observation purposes, for mapping purposes, for drone usage purpose, geospatial technology is required. Okay, so these are some broad based applications or uses of geospatial technology which we shall remember. Okay, so this was a basic introduction about geospatial technology. You should know the definition at least. If any data is associated with its location on earth or nearby,
the earth surface, then it becomes a geospatial data. ठीक है, so to control this data, it does not get misused, this data, government has brought national geospatial policy. So if any policy comes, you should remember which ministry has brought that policy. So first of all, you should remember that national geopolicy ministry national geospatial policy has been brought by Ministry of Science and Technology. So how the UPSC would ask the question? UPSC might ask you that national geospatial policy was brought by Ministry of Earth Sciences. ठीक है, Earth Sciences. So that would become wrong. You should know that Earth Sciences is not associated with national geospatial policy. You might think that it is related to data on Earth, location on Earth, so it might be related to Earth Science. So here UPSC would try to trick you. So you should remember that national geospatial policy was brought by Ministry of Science and Technology. So what were the basic vision or goal of this technology, this policy was that to make India a world leader in global geospatial space, to make integrated policy for digital economy and for better utilization of data, also for the private sector's participation, for better participation of private sector. So this is a basic outline of this national geospatial policy which recently Ministry of Science and Technology brought. So what is the institutional framework? You should remember just this body's name. The national under this policy, Geospatial Data Promotion and Development Committee would be set up. That would be the apex committee for handling this policy. All right, so this comes under Ministry of Science and Technology. Next thing, you should remember this term. What is digital twin? What UPSC tends to do is to ask this thing. All right, what UPSC tends to do is ask students about what does this term mean. ठीक है, for instance, UPSC gave a term public key infrastructure, asked what does public key infrastructure, which field does public key infrastructure belong to? It was related to something digital security. ठीक है, so you should remember what is, where does this digital twin come from, or what is digital twin? Last year UPSC asked what is qubit. ठीक है, so you should know that these little terms in technology, in science and technology, that comes in news repeatedly, that appears in news, in newspapers, you should know these terms. So digital twin is basically a virtual replica of a physical asset, process और सर्विस. किसी भी फिजिकल असेट का अगर हम वर्चुअल रेप्लिका क्रिएट करते हैं उसको हम बोलते हैं डिजिटल ट्विन. इट इज़ वेरी ऑब्वियस बाय इट्स नेम ऑल्सो. डिजिटल ट्विन, समथिंग ट्विन मीन्स अ कॉपी, दैट इज ऑब्वियसली अ वर्चुअल रेप्लिका. बिकॉज इट इज डिजिटल, इट वुड बी अ वर्चुअल रेप्लिका. All right, so this was basic outline about geospatial technology and national geospatial policy. You should remember those things. I told you the definition, the ministry associated, that committee which is the apex committee. All right, next is national data governance framework policy. So what is this? For understanding this, first you need to know what is non-personal data. So if any set of data which does not contain personally identifiable information, see, अगर किसी डेटा में कोई हम ऐसी इंफॉर्मेशन रिमूव कर दें जिससे कि हम किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर पाएँ तो वो बन जाता है नॉन पर्सनल डेटा. फॉर इंस्टेंस डेटा अबाउट द वेदर कंडीशंस और सप्लाई चेन डेटा, दैट you cannot identify whose data is this, which person's data, that becomes a non-personal data. All right, if there is personal information like name, date of birth, the Aadhaar card number, or maybe retina scan, or maybe fingerprint, that is personal data from which you can identify any particular individual. But if you cannot not identify that any particular individual, that is non-personal data. All right, so what types of non-personal data we have? We have public non-personal data such as land records, etc. Then we have community personal data, community non-personal data, sorry, that is data collected by municipal corporations. All right, for the purpose of म्यूनसिपैलिटी फंक्शनैलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस के पर्पज से जो कलेक्ट किया जाता है. फॉर इंस्टेंस इज अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, हाउ मेनी पीपल लिव इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ दैट सोसाइटी. So these things come under community non-personal data. All right, then private non-personal data. If any organization or private entity, any institution collects any data for its own purpose, for research purposes, that would become private non-personal data. All right, so this draft national data governance framework policy has been brought by Ministry of Electronics and Information Technology. As I told, any policy is brought, you should know which ministry is responsible for that policy.
ठीक है, यूपीएससी टेंड्स टू आस्क विच मिनिस्ट्री एसोसिएटेड विद दिस पॉलिसी और विद दिस टेक्नोलॉजी और विद दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, एनीथिंग, एनी प्रोग्राम, पॉलिसी, ठीक है. So let's talk about this national data governance framework policy. It aims to basically enhance access, quality and use of data, ठीक है, better use of data, quality of data improve हो और accessibility of data improve हो, user better हो. इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या benefit है? That is to maximize data led governance. If governance is led by data, it would become more objective, ठीक है, there would less subjectivity would be there, better policy could be framed, ठीक है. At the end of the day, citizen would get benefited by data led governance. Digital economy would be promoted. If there is better data, we could digitalize economy. Without data, we can, how would we digitalize economy? Where would we know that more infrastructure is needed or what all is required? Without data, how can we make objective policies? So to control that data, to collect that data, we need a policy. For that, this policy has been brought, ठीक है. तो these are some needs of the national data governance framework policy. So data led governance to promote digital economy, to modernize government data collection and to create some privacy standards. If data has been collected, it must be regulated, all right. If it has been, so how would it be regulated for privacy concerns? There must be a policy. So for that, government has brought this policy, ठीक है. So not much here, you should know what is personal data, what is non-personal data, these things, and which ministry is responsible for that. Then another thing, so see this thing that national data governance policy was brought by Ministry of Electronics, MIT, ठीक है. And this Niti Aayog has brought national data and analytics platform for open public use, ठीक है. What is this? It is basically a open platform where people can come, where companies can come, where various ministries can use this data for analysis and purposes, other purposes, all right. It would host a foundation, some data sets which can be utilized by government agencies for better visualization, for better analytics purpose, ठीक है. So how UPSC would trick you here? They would give you two statements. In one they would give national data governance framework policy is brought by Niti Aayog. Next statement would be National Data and Analytics Platform for Open Public Use has been brought by Ministry of Electronics and Information Technology. So these two statements have been switched. The ministry or the organization associated has been switched. स्टेटमेंट 2 की जगह पे होना चाहिए था नीति आयोग, लेकिन स्टेटमेंट 1 में नीति आयोग डेट दिया और स्टेटमेंट 2 में माइटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दे दिया. तो ऐसे भी आपको पढ़ना है कि आपको कुछ पॉलिसी, आप कुछ फ्रेमवर्क पॉलिसी प्रोग्राम पढ़ रहे हैं तो उसके साथ जो एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री है वो आपको याद रखनी है. तो नीति आयोग इज एसोसिएटेड विद नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, ठीक है. यू शुड नो दिस थिंग. इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि रिसेंटली बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट हैज़ एंडोर्स्ड इंडियाज डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, ठीक है. ये डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर क्या है? इट इज़ अ जॉइंट पब्लिक प्राइवेट एफर्ट फॉर एन इम्प्रूव्ड डेटा गवर्नेंस अप्रोच, ठीक है. बेसिकली वही है जो मैंने आपको बताया, डेटा गवर्नेंस के लिए हम बेटर पॉलिसीज लाने की कोशिश करें तो हमने एक आर्किटेक्चर बेसिकली क्रिएट किया है, दिस डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर डेपा फॉर इम्प्रूव प्राइवेट एंड पब्लिक एफर्ट्स इन डेटा लेड गवर्नेंस, ठीक है. डेटा लेड गवर्नेंस होगा, ऑब्जेक्टिव गवर्नेंस होगा, इट वुड लीड टू गुड गवर्नेंस. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डज गवर्नमेंट एम्स टू डू? इट एम्स फॉर गुड गवर्नेंस. Every fight is about good governance. Every policy is about good governance to deliver better and good governance to the public, to the citizenry, so that they could lead a better life, to improve the standard of living of the citizens. All policies program aim for improving the standard of living of the citizen of India, ठीक है. Then again another term YOTA D1. What does this YOTA D1 means? It is basically हाइपर स्केल डेटा सेंटर, ठीक है, जो कि रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में. यू शुड नो, जस्ट नो दिस, इट इज़ अ हाइपर स्केल डेटा सेंटर. अब डेटा सेंटर क्या होता है? यू शुड नो, डेटा सेंटर बेसिकली एक सिक्योर सेंट्रलाइज लोकेशन होता है कंप्यूटिंग एंड नेटवर्किंग का, जहाँ पे सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है, मतलब कलेक्ट किया जाता है, देन स्टोर किया जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोसेस्ड, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. सो एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज स्पेस है
डेटा सेंटर, ठीक है, जहाँ पे डेटा कलेक्ट होता है, स्टोर होता है, एंड इट इज़ एनालाइज्ड और प्रोसेस्ड फॉर फर्दर यूजेज फॉर बेटर डेटा लेड गवर्नेंस, ठीक है. So Yota D1, you should remember just this term, nothing much more about this. Just remember it is a hyperscale data center. It was inaugurated in Greater Noida, Uttar Pradesh. Know this thing. Next आता है आपका fifth generation. It has been very much in news. Question can be asked. Question have been asked on VoLTE, ठीक है, Voice over LTE, NLT. When 4G was in news around 2018-19, UPSC asked a question when it was highly, very much in news. So you should also know what is 5G as it is in news these days. So what is 5G? 5G basically recent. How why is it news? Prime Minister inaugurated country's first 5G test bed. ठीक है, तो 5G टेस्ट बेड मल्टीपल IITs ने कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था वो इनाग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर ने हमारे और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने. सो व्हाट डज 5G बेसिकली मीन्स 5G आप पढ़ दें तो आपको 3G 4G 5G में डिफरेंस भी पता होना चाहिए, ठीक है. 3G 5G 4G 5 एंड 6G में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होंगे. दोज पैरामीटर्स आर अबाउट दिस, ठीक है. ये जो आपके डिप्लॉयमेंट कब हुआ, उसका बैंडविड्थ क्या है, उसकी लेटेंसी क्या है, एंड स्पीड एवरेज क्या है. मोस्टली क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड अराउंड दिस लेटेंसी. क्या होता है, स्टेटमेंट दिया होगा 5G हैज़ लोअर लेटेंसी देन 4G. तो आपको लगेगा यार लोअर कैसे हो सकता है, 5G इंप्रूव टेक्नोलॉजी है तो हायर होना चाहिए, मगर है कि एक्चुअली में लो लेटेंसी का मतलब है बेटर स्पीड आएगी, ठीक है, लैग कम होगा. तो अगर आपको लेटेंसी का मतलब नहीं पता है तो आप वहाँ पे स्टेटमेंट गलत कर देंगे. तो इसीलिए ये क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया जाता है. तो लो लेटेंसी होगी जैसे आप टेक्नोलॉजी में ऊपर बढ़ेंगे. देखिए लेटेंसी 3G में कितनी 100 to 150 मिली सेकेंड है, 6G में कितनी है लेस देन 1 माइक्रो सेकेंड, ठीक है, अराउंड 1 माइक्रो सेकेंड. 5G में कितना अराउंड 10 माइक्रो मिली सेकेंड, ठीक है. तो कम हो रही है ना, देखिए आप. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है लेटेंसी कम होती है. आपको ये देखना डेटा स्पीड क्या होती है, बढ़ती है. आपको ज़रूरी नहीं है आपको ये डेटा याद हो, आपको ये याद होना चाहिए कंपैरेटिवली कैसे इंप्रूव या कैसे डिक्रीज होती है, इंक्रीज या कैसे डिक्रीज होती है व्हेन वी मूव अबव इन टेक्नोलॉजी. स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड बढ़ेगी जैसे हम 3G से 6G की तरफ बढ़ेंगे. लेटेंसी क्या होगी, घटेगी. बैंडविड्थ क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है. तो बस आपको ये मानना चाहिए इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ दीज पैरामीटर्स, आपको ये बस मालूम होना चाहिए ऑफ दीज पैरामीटर्स कि क्या होगा व्हेन वी मूव अबव एंड वी मूव बिलो टेक्नोलॉजी, ठीक है. तो 5G मतलब मैंने आपको ये बेसिक आउटलाइन दे दिया है, यू शुड अंडरस्टैंड दिस. 6G में जैसे आप बढ़ेंगे 5G 6G में बढ़ेंगे, स्पीड वुड इंक्रीज, लेटेंसी वुड डिक्रीज, बैंडविड्थ वुड ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है. डिप्लॉयमेंट ईयर्स आपको अप्रॉक्सीमेटली पता होने चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट आपका 5G स्पेक्ट्रम की बात करें तो मैंने बताया लोअर फीचर्स क्या है इसके. 1 गीगाहर्ट्ज़ ऑन स्पेक्ट्रम चार्ट होता है, वाइडर कवरेज बट लिमिटेड इंप्रूवमेंट इन स्पीड एंड लेटेंसी, ठीक है, ठीक है. वाइडर कवरेज है फॉर इंस्टेंस इसका. थिनली पॉपुलेटेड एरियाज एंड प्रोवाइड्स इंडोर कवरेज इन बिल्टअप. जो थिनली पॉपुलेटेड एरियाज वहाँ पे बेटर यूज़ कर सकते हैं 5G स्पेक्ट्रम का. ये आता है 5G के लो बैंड की बात हो गई, ठीक है. हम 5G के अंदर बैंड्स की बात कर रहे हैं. मिड बैंड क्या है, आइडियल फॉर 5G बिकॉज इट कैन कैरी प्लेंटी ऑफ डेटा. देन 5G स्पेक्ट्रम में ही अगर हम हाई बैंड की बात करें तो इट इज़ द बेस्ट बैंड विद इन 5G. ये हमने जो डिस्कस किया लो बैंड, मिड बैंड, हाई बैंड, इट इज़ विद इन दी 5G, ठीक है. हम ये कंपेयर पहले हम कर रहे थे विद 3G 4G 5G एंड 6G, लेकिन अब 5G के अंदर हम बात करें तो लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड आता है, जिसमें सबसे बेहतर कौन सा होता है, हाई बैंड, ठीक है. स्पेक्ट्रम दीज आर डिवाइडेड ऑन स्पेक्ट्रम्स. So what all technologies does 5G bring? It brings these technologies: massive multi-user or MIMO, ठीक है, multiple input, multiple output enabled network. There is small cell station to connect the base stations and users seamlessly, mobile edge computing and beam forcing, ठीक है. तो these technology का amalgamation बनाता है आपकी 5G टेक्नोलॉजी. आपको बस एक आउटलाइन पता होना चाहिए. These technologies are covered under 5G. This MIMO, small cell stations, mobile edge computing and beam forcing, ठीक है. Another term that has been in very much in news is network slicing. UPSC could ask what does network slice, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होगा कि network slicing has been seen in news, what does this term actually mean? तो नेटवर्क स्लाइसिंग में आपको समझा दूं क्या होता है. एक सिंगल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम मल्टीपल नेटवर्क्स क्रिएट करते हैं फॉर इट्स मल्टीपल यूजेज.
फॉर इंस्टेंस एक पर्टिकुलर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर 5G पे हम यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल इंटरनेट के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम उसको स्मार्ट डिवाइसेस के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऑटोमेटेड कार्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो सिंगल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीइंग यूज्ड फॉर मल्टीपल नेटवर्क्स. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इसकी? अ नेटवर्क स्लाइसिंग इज अ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन that allows multiple networks to be created on top of a common physical infrastructure. ठीक है, तो ये हो गया आपका नेटवर्क स्लाइसिंग, मैंने आपको पहले समझाया, डेफिनेशन भी आप पढ़ सकते हैं इसमें. नेक्स्ट फाइबराइजेशन क्या है? फाइबराइजेशन क्या, बेसिकली आप टर्म पढ़ के भी समझ सकते हैं, इट्स वुड समथिंग रिलेटेड टू ऑप्टिकल फाइबर. ठीक है, क्योंकि फाइबर इज ऑलवेज रिलेटेड टू ऑप्टिकल फाइबर व्हेन यू रीड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर यूपीएससी. ठीक है, तो जब हम रेडियो टावर्स को कनेक्ट करते हैं बाय ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फाइबराइजेशन. दिस हैज बीन इन न्यूज, सो यू शुड नो व्हाट डज फाइबराइजेशन मीन. ठीक है, in India only 33% of towers are fiberized, and while in US, Japan, China around 80 to 90% have been fiberized. So you should know just the fiberization ki definition, not this data. This data would be used in mains examination. If you remember this now, it would help you in mains, but if you don't remember for now, it is okay, no problem. All right, you should know network slicing का term, you should know fiberization का term. So these little terms where questions can be framed. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन हुआ. अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कैसे जब बढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पे क्या फ़र्क पड़ता है. सी देखिए, पहले आपकी आगे रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं ना, तो देखिए वेवलेंथ घट रही है एंड फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है. वेवलेंथ दिस इज फ्रॉम 1 to ठीक है, वेवलेंथ देखिए बढ़ दी है, यहाँ पे देखिए कितनी छोटी छोटी है. फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे. ठीक है, तो बस आपको ये याद करना है, ये जो आपकी स्पेक्ट्रम है, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए. रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे. ठीक है, ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए. इस साइड जब जाएंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वापस लौटेंगे तो आपकी वेवलेंथ बढ़ेगी एंड फ्रीक्वेंसी घटेगी. बस आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर आप एक तरीके से एक सीक्वेंस में याद कर लीजिए. रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा का व्हेन यू विल गो इन दिस वे, फ्रीक्वेंसी वुड इंक्रीज, वेवलेंथ वुड डिक्रीज. बस ऐसे आप सीक्वेंस याद कर लीजिए. एंड ऑल्सो दी एप्लीकेशंस, फॉर इंस्टेंस रेडियो का आप यूज़ करते हैं ब्रॉडकास्ट पर्पजेज़ के लिए, माइक्रो का यूज़ करते हैं आप कुकिंग, रेडार, टेलीफोन एंड अदर सिग्नल सेंड करने के लिए. देन इंफ्रा इज यूज फॉर हीट पर्पज, जो सन से लाइट आती है, जहाँ से हमें हीट मिलती है, दैट इज फ्रॉम इंफ्रारेड वेव्स. ठीक है, विजिबल लाइट enables you to see things, see objects. Ultraviolet or UV is absorbed by the skin and it is also very harmful for the skin. X-ray is used to observe objects within an object, for instance our body x-rays होते हैं. Gamma is again used for medicine purposes, for killing cancer cells. ठीक है, तो आपको थोड़ा सा एक दो एप्लीकेशन उसके इन वेव्स के. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. तो आपको सीक्वेंस बस याद होना चाहिए इसमें, इस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके एक दो एप्लीकेशंस, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आप डिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आपको जो सीक्वेंस है वो याद होना चाहिए. अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है. ठीक है, वो नहीं करना है आपको. अच्छा, स्पेक्ट्रम रिलेट्स टू रेडियो फ्रीक्वेंसीज एलोकेटेड टू द मोबाइल इंडस्ट्री. दिस वन 5G स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम रिलेट्स टू द रेडियो फ्रीक्वेंसीज एलोकेटेड टू द मोबाइल इंडस्ट्री एंड अदर सेक्टर ऑफ कंपनी. रेडियो स्पेक्ट्रम की हमने एलोकेशन किया है. ठीक है, इसमें यहाँ पे एलोकेशन हुआ है. ठीक है, ई बैंड क्या है? ई बैंड टर्म पूछ सकते हैं. ई बैंड बेसिकली है रेंज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 60 गीगाहर्ट्ज टू 90 गीगाहर्ट्ज इन इलेक्ट्रोमैग्नेट. इसमें इस सेक्टर में जो 60 से 90 गीगाहर्ट्ज का है उसको हम बोलते हैं ई बैंड. ठीक है, आपको ये बस पता होना चाहिए. ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका आता है 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क. ठीक है, इसके ये क्या है? रैन इज पार्ट ऑफ नेटवर्क. वन सेकेंड. यस, RAN is part of network that connects the main network infrastructure to end user. जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है और जो आप यूज़ कर रहे हैं इंडिविजुअल डिवाइसेस, उससे जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं रेडियो एक्सेस नेटवर्क 5G ओपन. ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अगेन इफ यूपीएससी आस्क्स व्हाट इज RAN,
you will give this definition. The UPSC would give, you have to just mark the option. In mains they would ask what is RAN, you will have to give the information, but here they give the answer itself, you have to just identify the correct answer. Give me a second. राइट, सो बेनिफिट्स क्या है इसके? इंटेलिजेंट एंड प्रोग्रामेबल नेटवर्क्स क्रिएट करना, लोअर टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, डेटा सेंटर इकोनॉमिक्स टू रेडियो नेटवर्क, वेंडर डाइवर्सिटी, एजिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, फास्टर टाइम टू नेटवर्क। रैन क्या हमने समझा कि पार्ट ऑफ नेटवर्क दैट कनेक्ट द मेन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर टू एंड यूजर्स, आप तक के जो कनेक्शन होता है मेन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर से, उसको बोलते हैं रैन। ठीक है, आपको बस इतना मालूम होना चाहिए, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्टैंड अलोन 5G। स्टैंड अलोन 5G क्या है? ये टेलीकॉम नेटवर्क वेयर बोथ कोर नेटवर्क एंड रेडियो एक्सेस नेटवर्क आर अपग्रेडेड टू 5G। ठीक है, इट रिप्लेसेस LTE नेटवर्क, 4G वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स एंड अलाउज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑपरेशन ऑफ 5G सर्विस विदाउट एनी इंटरेक्शन विद एन एग्जिस्टिंग 5G कोर। ठीक है, if UPSC would ask question, it would not go so deep generally, because it hasn't asked question around 5G or something. First it would ask basic applications or basic what is RAN, ठीक है, what are the benefits of RAN. It would not go so deep. ठीक है, so you will have to understand what things to read now and what to ignore. ठीक है, so you will have to cover only important topics from now on, because you have limited amount of days, limited amount of hours, I would say, left with you. Don't indulge yourself in peripheral topics, go for the core topics, go for the very much essential topics which would have high probability of appearance in exam. UPSC could ask anything, that nobody can guarantee, but at least आप उन टॉपिक्स पर ध्यान दें अभी जिनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि वो आपको मार्क्स दिलाएंगे। अगर आपने अभी से जो आप पढ़ रहे हैं, अगर उसमें से 3-4 क्वेश्चन फंस जाते हैं, अगर लगभग आप 12 से 15 मार्क्स अभी से क्योर कर पाते हैं अभी की पढ़ाई से, सिर्फ पहले जो आपने पढ़ा वो तो दैट इज़ वेल एंड गुड, बट अगर आप अभी की पढ़ाई से 10-12 नंबर स्कोर कर लेते हैं, दैट इज़ दी पर्पस सॉल्व हो गया। अगर इस वीडियो से आपके कुछ 2-3 क्वेश्चन सही हो जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, गुड फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज़ बेसिकली कम्युनिकेशन जिसमें कि हम किसी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज़ करते हैं फॉर, मतलब कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। इफ़ वी इन्वॉल्व एनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, दैट इज़ नोन एज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। वेरी ऑब्वियस विद इट्स नेम इटसेल्फ। ठीक है, देखिए डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, व्हाट इट इज़? इट रिफर्स टू एनी कम्युनिकेशन लिंक दैट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन इट्स प्रोपोगेशन पाथ। जैसे कि GSAT का इंडिया यूज़ करती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए, INSAT 3A का यूज़ करती है इंडिया। ठीक है, तो इसके ये आपको समझ में आ गया क्या होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। देन व्हाट इज़ दिस सैटेलाइट कम्युनिकेशन, व्हाट आर दिस कंपोनेंट्स? 2 कंपोनेंट होते हैं, one is the space component, that is the satellite itself. Then next is the ground component, जहाँ पे आपको ट्रांसमिशन सिग्नल मिल रहे हैं। फॉर इंस्टेंस इट कुड बी अ टावर, इट कुड बी योर डिवाइस एज वेल। ठीक है, तो ये आपका हो गया सैटेलाइट कम्युनिकेशन। व्हाट आर द एडवांटेजेस? अगेन एडवांटेजेस पूछेगा तो इट वुड बी ऑल ऑफ द अबव। ये बेसिक फंडा है UPSC का, ऑल ऑफ द अबव। तो चीपर होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। ठीक है, रीच बढ़ जाएगा टेलीकॉम ऑपरेटर्स का, रिमोट लोकेशंस पे इजीली कनेक्ट कर सकते हैं हम थ्रू सैटेलाइट नेटवर्क रादर देन थ्रू वायर्ड नेटवर्क। ठीक है, ग्लोबल कम्युनिकेशन में यूज़ होता है सैटेलाइट नेटवर्क। ठीक है, इसी तरीके से सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज होती हैं जिसमें कि हम इंटरनेट सर्विसेज को हम स्पेस के थ्रू प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं रादर देन थ्रू ब्रॉडबैंड सिग्नल्स वगैरह। जैसे वायर्ड की जगह पे हम सैटेलाइट के थ्रू प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर की जगह पे हम सैटेलाइट के थ्रू प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। इसके भी बेनिफिट सिमिलर होंगे जस्ट लाइक सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से, मीडियम लो अर्थ ऑर्बिट से। ठीक है, अच्छा आपको स्टार लिंक जो आपका SpaceX का जो प्रोग्राम है, दैट सैटेलाइट्स आर इन लो अर्थ ऑर्बिट, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, SpaceX जो एलन मस्क वाली कंपनी है उसका। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाईफाई। दीज आर इंपॉर्टेंट अदर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स दैट हैव बीन इन यूज एंड बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम। वाईफाई क्या? वाईफाई का बेसिक फॉर्मूला एटलीस्ट आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इट स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी।
It is a wireless networking technology that gives internet access. Everybody knows you are using for, maybe you are using Wi-Fi for watching this video itself. So it gives internet access to devices like computers, laptops, mobile phones, etc. आपको पता बस ये होना चाहिए कि ये वायरलेस, आपको बेसिक डेफिनेशन तो पता ही होगी, दैट आई नो यू वुड नो, बट maybe you might not know that it uses radio frequencies और radio waves, और उसके बैंड होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेके 5 गीगाहर्ट्ज तक. तो यू शुड नो दिस दैट इट यूजेस रेडियो फ्रीक्वेंसीज, दिस एक्स्ट्रा थिंग यू शुड नो. एंड देयर इज वन PM वानी स्कीम विच इज एसोसिएटेड विद प्रोवाइडिंग वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी इन द कंट्री. ये आपको पता होना चाहिए दिस थिंग, ठीक है. PM वानी स्कीम यू शुड नो, इट इज रिलेटेड विद वाईफाई कनेक्टिविटी इन द कंट्री. एंड कौन सा डिपार्टमेंट एसोसिएटेड? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, नॉट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, sorry, not might. If there is mentioned department, remember the department would be Department of Telecommunication, ठीक है. Another mobile app for this purpose is Y dot, built by Railtel and C dot, ठीक है. UPSC could ask that Wi-Fi network can also be accessed through mobile app Y dot. So consider the following statements, which of these are correct. तो उसमें दिया होगा Y dot app is built by माइक्रोसॉफ्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन. तो माइक्रोसॉफ्ट नहीं ना, रेलटेल ने डेवलप की. तो आपको ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी होगी अगर कोई ऐप डेवलप हुई है, दैट हैज इन न्यूज विच ऑर्गेनाइजेशन और विच कंपनी और विच एंटिटी हैज डेवलप दैट ऐप, ठीक है. उसका पर्पस क्या है. एंड जैसे मैंने पहले आपको बताया, कोई प्रोग्राम स्कीम एक्टिविटी आती है, विच मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड, विच डिपार्टमेंट इज एसोसिएटेड, यू शुड नो. सिमिलरली एनी प्रोग्राम, एनी इवेंट or any application has been launched, you should remember which organization or entity has launched that app, ठीक है. यूपीएससी ने इसी तरीके से इस पे क्वेश्चन पूछा था, यूपीआई, ठीक है, यूपीआई जिससे आप पेमेंट करते हैं ना, वो किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है? इट वाज रिलेटेड टू नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI से एसोसिएट, ठीक. तो यूपीएससी हैज़ आस्क्ड, यूपीएससी विल आस्क, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है. तो मैंने आपको बता दिया. रेलटेल बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ही एक मिनी रत्ना PSU है, और इसने वाई डॉट ऐप यूज डेवलप किया है. इसके अलावा PM वानी इज अनदर स्कीम विच एम्स टू प्रोवाइड वायरलेस कनेक्टिविटी इन द कंट्री, ठीक है. वायरलेस कनेक्टिविटी आपको पता है, इट स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी और वाईफाई दैट वर्क्स अंडर रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.4 गीगाहर्ट्ज टू 5 गीगाहर्ट्ज. ये आपको पता होना चाहिए. Next is what is splinternet. It has been very much in news. It could be asked what does splinternet means. अच्छा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टर्म्स बहुत पूछे जाते हैं, तो दैट इज व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दीज टर्म्स. इट कुड बी आस्क्ड. स्प्लिंटरनेट क्या है? रशियन एंड यूक्रेन वॉर में जो है थ्रेट किया है, बेसिकली नया थ्रेट उपज के आया है कि इंटरनेट कुड बी स्प्लिंटर्ड. मतलब कि जैसे चाइना डज नॉट अलाउज Facebook, does not allows WhatsApp, does not allows Instagram to work in China. There are blockages. देखिए यहाँ पे लिखा भी है. So I'm trying to teach you with other things also apart from this PT, but I'm covering all these things also from PT. तो चाइना का जो ग्रेट फायरवॉल है that keeps American tech giants out. तो ठीक है, इसको बोलते हैं स्प्लिंटरनेट. कि मतलब आप इंटरनेट इज इंक्रीजिंगली फ्रैगमेंटेड ड्यू टू नेशंस फिल्टरिंग कंटेंट. नेशंस जब फिल्टर करने लगते हैं कंटेंट को, ऑनलाइन कंटेंट को, इंटरनेट को, तो उसको बोलते हैं स्प्लिंटरनेट, ठीक है. इंटरनेट को अगर स्प्लिंटर कर दें तो बन गया स्प्लिंटरनेट. रशिया ने इसी तरीके से, रशिया ने 2019 में एक लॉ पास किया, सॉवरेन इंटरनेट लॉ, जो कि और दी ऑनलाइन आयरन कर्टन, ठीक है. आयरन कर्टन कहाँ से आया? कोल्ड वॉर से आया ये टर्म, ठीक है, जो कि डिस्कनेक्ट कर देता है रशिया के इंटरनेट को फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो ये हो गया, इंटरनेट के फ्रैगमेंट्स हो रहे हैं ना ऐसे ऐसे इस तरीके से. ये पूरा इंटरनेट था, उसके हमने फ्रैगमेंट कर दिए कंट्री वाइज, तो वो आपका हो गया स्प्लिंटरनेट, ठीक है. नेक्स्ट टर्म आपका जो न्यूज़ में है वो है गीगा मैश. इट इज़ एन इनोवेटिव वायरलेस नेटवर्क सोल्यूशन दैट कैन गिव फाइबर लाइक बैंडविथ इंटरनेट सर्विसेज टू सब अर्बन एंड रूरल एरियाज. बेसिकली है कि वायरलेस नेटवर्क सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है वायरलेस नेटवर्क सोल्यूशन. सेकंड ऑफ ऑल इट कैन गिव बैंडविड्थ सिमिलर टू फाइबर लाइक. मतलब जो इंटरनेट होता है फाइबर बेस्ड, फाइबर ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड, वो जो बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है उसी के रेंज में हम सब अर्बन और रूरल एरियाज में नेटवर्क प्रोवाइड कर सकते हैं, बीइंग अ वायरलेस नेटवर्क इटसेल्फ, ठीक है. तो दैट वुड लीड टू बेटर नेटवर्क
that would lead to better connectivity. It would address the problem of congestion issues. ठीक है, तो ये आपका हो गया गीगा मेश. आपको गीगा मेश में दो चीज़ याद रखनी है, वायरलेस नेटवर्क है और सिमिलर बैंडविड्थ प्रोवाइड कर सकता है एज फाइबर. ठीक है. नेक्स्ट वीपीएन. वीपीएन हैज़ बीन वेरी मच इन न्यूज़. यू शुड नो व्हाट इज वीपीएन. वीपीएन बेसिकली क्या करता है, विल कम वीपीएन देन विल गो बैक टू सर्टेन. वीपीएन बेसिकली आपके नेटवर्क को इनक्रिप्ट कर देता है जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं अपने डिवाइस को. ठीक है, नेटवर्क इंटरनेट से, देन इट encrypts your connection so that any third party cannot access your network. ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल डायग्राम के थ्रू समझिए. आपने डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए कहा, वीपीएन क्लाइंट में आया, फिर आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से वो कनेक्ट करेगा, देन अगेन वीपीएन सर्वर आपको उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जो नेटवर्क आपको वापस आ रहा होगा उसको इनक्रिप्ट करेगा, दैट वुड लेटर गेट यू एक्सेस टू इंटरनेट. तो इतने इनक्रिप्शन हो जाते हैं. ठीक है, 2 बार इनक्रिप्ट होता है. नॉर्मल क्या होता है, आपने डिवाइस को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट किया एंड यू आर नाउ कनेक्टेड टू इंटरनेट. अब इसमें क्या, वीपीएन क्लाइंट वुड कम इन पिक्चर, वीपीएन सर्वर वुड कम इन पिक्चर एंड इट वुड इनक्रिप्ट योर डिवाइस. इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आप किसी मैलवेयर से बच सकते हैं. ठीक है, आपके ब्लॉकेज से बच सकते हैं. अगर इंटरनेट ब्लॉक्ड है, यू कैन यूज VPN is basically used in those countries where such sites are not accessible, for instance in China, in Russia, in Iran, in Turkey, where there are bans on multiple websites that can be accessed through VPN, but it has also been misused. That is why government of India has brought a policy. Basically they have advised, here we'll come back. सर VPN कंपनीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइज किया है टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, सर्टिन ने एडवाइस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे. ठीक है, सर्टिन ने, दिस सर्टिन ऑर्गेनाइजेशन. तो कि क्योंकि VPN का मिसयूज़ भी होता है फॉर मल्टीपल पर्पज़, फॉर टेरर एक्टिविटीज़, फॉर एक्सेसिंग पोर्नोग्राफी, फॉर अदर वेरियस मलिशियस पर्पजेज, VPN हैज़ बीन यूज्ड एंड इज़ बीइंग यूज्ड. ठीक है, तो इस वजह से गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड टू कीप अ लॉग ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर्स एक्सेसिंग VPN सर्विसेज. ठीक है, तो सर्टिन क्या है बेसिकली, इट वॉज फॉर्म्ड अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. ये आपको बस पता होना चाहिए. एंड इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. आपको ये बात पता होनी चाहिए. नेक्स्ट, इट इज़ वेरी मच द कोर बॉडी, प्राइमरी बॉडी फॉर assuring cyber security of the nation. आपको ये पता होना चाहिए. Certain is related to cyber security. आपको ये पता होना चाहिए. It is under Ministry of Information and Technology, MeitY के अंदर है, and it is also formed under Information and Technology Act 2000. आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है, 2000. ठीक है, IT Act 2000 के अंदर है and it is under MeitY and it is responsible for आपका cyber security of the nation. तो बेनिफिट्स ऑफ, मैंने आपको IP एड्रेस बता दिया है. एंड अगेन वी हैव ऑल्सो डिस्कस इशूज विद VPN. नेक्स्ट इज दिस डार्क नेट. व्हाट इज दिस डार्क नेट? डार्क नेट और डार्क वेब बेसिकली इज दैट पार्ट ऑफ इंटरनेट विच यू कैन नॉट एक्सेस थ्रू नॉर्मल वेब ब्राउजर्स और सर्च इंजन. आप गूगल पे सर्च करेंगे, दैट इंटरनेट पार्ट यू कैन नॉट एक्सेस, दैट इज नोन एज डार्क वेब. ठीक है, आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं. जैसे आपने जो सर्च किया सरफेस वेब, आप बेसिकली 4% आप एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज नोन एज सरफेस वेब थ्रू गूगल, बिंग, विकीपीडिया. बट मल्टीपल इंफॉर्मेशन, मल्टीपल डेटा दैट इज नॉन एक्सेसिबल टू नॉर्मल यूजर्स थ्रू दीज सर्फेस इंजन्स is known as dark web. It includes medical records, academic information, multilingual. ठीक है, deep web. And beyond deep web there is something called dark web. Dark web क्या होता है? It is highly encrypted and can be used by only certain web browsers such as this the Onion Ring. इस तरह के कुछ वेब ब्राउजर्स हैं, बस इन्हीं के थ्रू हम डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं. एंड it is used for multiple nefarious activities such as drug trafficking and also for terror activities as well, for some use for private communication also. Many political protests which think that their government could jeopardize their communication, they use this. For instance, in countries, some countries like Russian Ukraine war is going on, so those political leaders which think the other warring country can hack their communication, they also use dark web to
remain safe from the hacking activities as well. So this is some of the purpose of dark web. So आपको बस ये पता होना चाहिए कि dark web is a part of internet which cannot be accessed through traditional search engines. You should know this definition and you should know some purposes which I have told you through this diagram. ठीक है, डार्क नेट इज इटसेल्फ इन ओनली अ पार्ट ऑफ डीप वेब, जो मैंने आपको बताया. ठीक है, एप्लीकेशन ऑल्सो वी हैव टोल्ड. कंसर्न क्या है, मैंने आपको वो भी बताया कि ड्रग ट्रैफिकिंग हो सकता है, एथिकल कंसर्न हो सकता है, एंड एनोनिमिटी क्योंकि इतनी ज़्यादा होती है तो एनी इलीगल एक्टिविटी कुड बी कैरिड आउट विच इज़ अ थ्रेट टू दी नेशनल सिक्योरिटी एज वेल. तो इस वजह से दिस बिकम्स अ थ्रेट. तो ये आपका हो गया. नेक्स्ट आता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसेंटली शायद 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो नाउ एज आई हैव टोल्ड यू, यूपीएससी जब एप्लीकेशन पूछता है तो उसमें बिना स्टेटमेंट पढ़े आप आंसर तक पहुंच सकते हैं. तो उसका ऑप्शन क्या होता है, आप गेस कर सकते हैं ऑप्शन उसका क्या होगा. सही 2020 वाले आप चेक करेंगे जाके, तो उसका भी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था उसका डी. ठीक है, व्हाट वर द एप्लीकेशन, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या बेसिकली, आपको बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है एनी टेक्निक दैट इनेबल्स मशीन टू सॉल्व अ टास्क इन अ वे ह्यूमन लाइक ह्यूमंस टू. इंसानी तरीके से अगर मशीन्स वर्क करने लग जाएं, उनको इनेबल करें हम थ्रू यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, थ्रू यूज़ ऑफ टेक्निक्स टू इनेबल मशीन्स टू वर्क लाइक ह्यूमंस डू, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस इन मशीन्स, आर्टिफिशियली इम्बाइब्ड, सो इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, what is machine learning then? Machine learning is basically algorithms that allow computers to learn from examples without being explicitly programmed. ठीक है, विदाउट एनी एक्सप्लिसिट प्रोग्राम, अलग से प्रोग्रामिंग जरूरत नहीं है, लेकिन हमने उसमें इतना डेटा फेच कर दिया है, तो थ्रू दैट डेटा कंप्यूटर ट्राइज टू लर्न इटसेल्फ थ्रू एल्गोरिथम्स, थ्रू प्रीवियस डेटा, थ्रू डेटा सेट्स, ठीक, थ्रू इन्फॉर्मेशन फेड टू इट, वो एक डिसीजन पहुंचने की कोशिश करता है. दैट इज मशीन लर्निंग. लर्निंग थ्रू दी एल्गोरिथम्स, ठीक है, इज नोन एज मशीन लर्निंग. उसी के अंदर आता है आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. इट इज़ अगेन ब्रेन इंस्पायर्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स. ठीक है, जैसे इंसानी दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं ना, उसी तरीके से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स काम करते हैं. ठीक है, इट इज़ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग. एंड उसके अंदर अनदर पार्ट इज डीप लर्निंग. इट इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग which uses deep artificial networks as models and automatically builds a hierarchy of data representation. It again utilizes the data already fed and tries to make an intelligent decision through developing a hierarchy of data representation. ठीक है, समझ में आ रहा है. Artificial intelligence is a broader term. Machine learning is a subset of that. Artificial neural network is again a subset, and at the last there is deep learning. ठीक है, that uses in very deep artificial neural networks for modeling purpose, for building a hierarchy of data representations. ठीक है, तो आर्टिफिशियल आपको समझ में आ गया. इसके बेसिकली एप्लीकेशंस आपको पता होने चाहिए एंड सम टर्म्स विच आर बीइंग यूज्ड इन न्यूज़. फॉर इंस्टेंस अभी हम देखेंगे जैसे बार्ड या चैट जीपीटी. व्हाट आर दीज? दीज आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम विच कैन कम्युनिकेट विद ह्यूमन बींग्स and make and basically fed them with information. ठीक है, they can write songs, they can write blogs, they can write essays, they can do all those things which human being as a creative person can do. ठीक है, a lot of things, not all the things that would surpass human being, so a lot of things they can do. so ये हो गया. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे, उसकी चिंता नहीं है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन मैंने आपको पहले बता दिया, यूपीएससी पूछ चुकी है यहाँ से क्वेश्चन. तो इट कैन बी यूज इन ऑटोमोबाइल्स, बिजनेस, एजुकेशन, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, गेमिंग, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वॉट एवर you can think of, artificial intelligence can be used and is being used. Not just can be used, it is being used. It is used in automobiles. ठीक है, आपकी कार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके वो फीचर्स होते हैं. ठीक है, आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ होता है, बिजनेस में यूज़ होता है, गेमिंग में आप यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को. ठीक है, गवर्नमेंट यूज़ करती है, हर जगह यूज़ होता है, एजुकेशन में यूज़ होता है. अगेन आपका एजुकेशन में यूज़ होता है, हर जगह पे यूज़ होता है. ठीक है, टाइप्स ऑफ एआई ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट बढ़ते हैं. जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. चैट जीपीटी, बार्ड, लैम्डा, दीज आर कॉल्ड जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, ये क्या है? दीज आर कन्वर्सेशनल एआई लैंग्वेज बेस्ड ऑन डीप लर्निंग मॉडल बिल्ट ऑन द ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर. जैसे डीप लर्निंग मतलब कि उन्होंने इंटरनेट से सब डेटा उठा रखा है. ठीक है,
अब उस डेटा के थ्रू वो आपको एक कन्वर्सेशन बिल्ड करते हैं आपके साथ, ठीक है, आपको आपके जवाब प्रोवाइड करने की, आपके आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सो इट इज़ अ कन्वर्सेशनल एआई लैंग्वेज बेस्ड ऑन डीप लर्निंग मॉडल। मैंने आपको डीप लर्निंग मॉडल बताया, जैसे कि डेटा फीड किया जाता है, ठीक है, जो इंटरनेट पे डेटा एक्सेसिबल है, उस डेटा का यूज़ करके दे ट्राई टू आंसर द कन्वर्सेशंस, ठीक है, एआई ट्रांस आंसर्स द क्वेश्चन, ठीक है। इट इज़ अ डीप, इट यूजेस डीप न्यूरल नेटवर्क एंड इज ट्रेन्ड ऑन कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट डेटा फ्रॉम इंटरनेट, यही मैंने आपको पहले बताया, allowing it to generate human-like text and to perform various text tasks like questioning, answering and conversation, ठीक है। Lambda is a machine learning, वही गूगल का चैटबॉट बेसिकली लैम्डा, दैट इज नाउ वी कैन से बार्ड, गूगल इज मोर फोकसिंग ऑन बार्ड एंड recently it has been launched also. Otherwise ChatGPT is the flag bearer of this generative artificial intelligence, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना ये क्या चीज़ है? ये सब मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि एल्गोरिथम दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट न्यू कंटेंट लाइक ऑडियो, कोड, इमेजेस, टेक्स्ट, सिमुलेशन एंड वीडियोस, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। सी अनदर पार्टनरशिप, what is important for the UPSC exam, partnerships in such technologies. So GPI or Global Partnership on AI is a leading partnership. India is a part of this. आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ग्लोबल पार्टनरशिप्स हैं, ग्लोबल इनिशिएटिव्स, उसमें इंडिया पार्ट है कि नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस? इट इज़ एन इंटरनेशनल एंड मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव टू गाइड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। एंड इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट, इट इज एक्चुअली इट इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? ओईसीडी में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। आपको इतना पता हो चाहे जीपाई क्या है, इट इज एसोसिएटेड विद रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ एआई एंड इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर, इट्स सेक्रेटेरिएट इज इन ओईसीडी, बस इतना पता होना चाहिए। और फिलहाल के लिए इंडिया इसका चेयरमैन भी है इस पार्टनरशिप का। दिस इज द इंफॉर्मेशन यू नीड टू हैव फॉर सॉल्विंग एन एमसीक्यू ऑन 20th May, ठीक है। इंडिया, ये तो ग्लोबल पार्टनरशिप हो गई। क्या इंडिया ने कोई इंडियन मतलब कंट्री के लिए कोई ऐसी स्कीम या प्रोग्राम या पॉलिसी कुछ है? जी हाँ, बिल्कुल है। रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ 2022 गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने कोलैबोरेट करके ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, ठीक है, अलॉन्ग विद इंटेल इंडिया। इंटेल जो आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटेल, हाँ बिल्कुल वही प्रोसेसिंग वाली, प्रोसेसर जो बनाती है, उसके साथ इन दो मिनिस्ट्रीज़ ने कोलैबोरेट किया था टू लॉन्च दिस रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ, ठीक है। ये इसका एम क्या है? टू इनेबल स्कूल स्टूडेंट्स विद एआई स्किल्स इन एन इंक्लूसिव मैनर्स, मतलब जो 8th से लेकर 10th तक के बच्चे हैं उनको एआई स्किल्स डेवलप कराना, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ, नाम से ही क्लियर है। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत रखना ज़रूरी है आपको एग्जाम में। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे, आपको लगेगा आपने पढ़ा नहीं है, उस तरीके से समझ में नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उस पर दिमाग मारेंगे ना अपने बैठ के वहाँ पे, यार रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ क्या हो सकता है, तो आपको लगेगा रिस्पॉन्सिबल एआई कुछ ऐसा एआई डेवलपमेंट की बात की होगी और यूथ है तो बच्चों के लिए होगा यार, हो सकता। तो अगर आप ऑप्शन में देख रहे हैं कुछ स्कूल स्टूडेंट्स टाइप्स कुछ लिखा है एआई स्किल डेवलप करना, तो आप उसको मार्क करके बढ़ सकते हैं, 2 नंबर आपके वहाँ पे सिक्योर हो जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत तीन, मैं कहता हूँ 3 चीज़ें, 3 पीस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। 3 पीस। पहला है पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड। सेकंड पी है पहला पी है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, मैं ऐसे बता देता हूँ। पॉजिटिव एटीट्यूड। सेकंड पी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की। थर्ड इज टू नॉट पैनिक, थर्ड पी, ठीक है। 3 पी होते हैं जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉजिटिव एट 3 पीस। इट इज़ नॉट वर्किंग एक्चुअली, दिस स्टाइलस इज नॉट वर्किंग, सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू दिस। 3 पी होते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड रख के एग्जाम देना है आपको, आपको मान के चलना है, उस एटीट्यूड से, विनर्स एटीट्यूड से जाना है कि आपका हो जाएगा इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड रख के एग्ज़ाम देना, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एग्ज़ाम देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो मैंने आपको इस क्वेश्चन के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट किया
कि आप अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्वेश्चन 2-3 सॉल्व कर लेते हैं तो भी आप बहुत बेनिफिट में रहेंगे। एंड थर्ड पी इज़ टू नॉट पैनिक, पैनिक नहीं होना है। पेपर टफ हो, पेपर ईजी हो, पेपर आपने कभी आपको लग रहा आपने तो पढ़ा ही नहीं है तो भी आपको लग रहा सारा पढ़ा है, किसी भी केस में पैनिक नहीं होना है। पेपर टफ है तो सभी के लिए टफ है, पेपर ईजी है तो सभी के लिए टफ है। टफ है तो कट ऑफ अपने आप नीचे जाएगी, तो उस हिसाब से पेपर अटेम्प्ट करना है। ईजी है तो पेपर कट ऑफ ऑब्वियसली ऊपर जाएगी, तो उस केस में भी पैनिक नहीं होना है। तो 3 पी का ध्यान रखना है। हैव पॉजिटिव एटीट्यूड व्हाइल गोइंग टू द सेंटर थ्रू आउट द पेपर, व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर थ्रू आउट द डे, ठीक है, CSAT के लिए भी। नेक्स्ट पी इज टू हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड। बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से सॉल्व होंगे, आपको लगेगा आपने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ ए प्रेजेंस ऑफ माइंड यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस। थर्ड पी आपका है आपका टू नॉट पैनिक, पैनिक नहीं होना है एग्जाम में, किसी भी हालत में पैनिक नहीं होना है। बहुत से बच्चे कोई पसीने छूट जाते हैं, यार इतना लंबा पेपर है, ये छोटा बड़ा है, बहुत लेंदी पेपर है, बहुत टफ पेपर है। पैनिक नहीं होना है, पेपर जैसा भी है आपको सॉल्व करने। 100 क्वेश्चन हैं आपके पास, आपको अराउंड 100+ मार्क्स स्कोर करने हैं। बस आपको पास दिमाग में इतनी बात होनी चाहिए, इसके अलावा कोई बात है उसको दिमाग से वाइप आउट कर दीजिए, चुपचाप बैठ के पेपर अटेम्प्ट करिए एंड यू विल गुड टू गो, यू विल बी इन दी मेंस लिस्ट, ठीक है। 3 पी का ध्यान रखेंगे। वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन पर। 4D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग में तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका। अच्छा 4D प्रिंटिंग होता क्या है, हाउ इट इज। अब 3D प्रिंटिंग पहले समझते हैं। 3D प्रिंटिंग में बेसिकली क्या होता है, हम 3D ऑब्जेक्ट्स प्रिंट करते हैं थ्रू, इट इज ऑल्सो नोन एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। हम 3D ऑब्जेक्ट प्रिंट करते हैं फ्रॉम डिजिटल 3D मॉडल्स। हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जो कैड मॉडल होता है ना, अगर कोई किसी ने ऑटो कैड वगैरह यूज़ किया होगा, कैटिया या सॉलिड वर्क्स यूज़ किया होगा, नहीं भी यूज़ किया तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बस आपको बता दूं ये कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम है, कैटिया, ऑटोकैड, ठीक है। इनके थ्रू हम 3D प्रिंटिंग मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। तो हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या 3D मॉडल हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, एंड थ्रू दैट वी प्रिंट 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। वी कैन प्रिंट एक्चुअली, अभी तक क्या प्रिंटर से, आप नॉर्मल प्रिंटर से क्या 2D एक पेपर पे प्रिंट करते हैं ना, दैट इज अ 2D मॉडल, 2D पेपर, ठीक है। 3 डायमेंशन में क्या होता है, हम एक ऑब्जेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, दैट इज एक्चुअली अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, तो वो होता है 3D, दैट इज यूज्ड थ्रू, दैट इज मेड थ्रू एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग डिजिटल 3D मॉडल और कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये हो गया 3D। अब 4D में क्या हो गया, 4D इसमें स्मार्ट मटेरियल्स होते हैं बेसिकली, इसमें डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है, दैट कुड चेंज इट्स स्ट्रक्चर इवन आफ्टर बीइंग प्रिंटेड, ठीक है। 4D प्रिंटिंग क्या होता है, इट इज अ, देखिए क्या लिखा है, रेनोवेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग वेयर इन स्पेशल मटीरियल्स इज यूज्ड टू प्रिंट ऑब्जेक्ट्स दैट चेंज शेप पोस्ट प्रोडक्शन। एक बार प्रोड्यूस कर दिया, देन ऑल्सो वी कैन चेंज शेप। ये कैसे शेप करेंगे, चेंज करेंगे, उसके लिए भी कुछ स्टिमुलाइज, कुछ ट्रिगर्स होने चाहिए ना, थ्रू मॉइस्चर कंटेंट उसका चेंज होगा, दैट वुड चेंज इट स्ट्रक्चर। टेम्परेचर कंडीशन चेंज होगी, देन इट वुड चेंज। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, पीएच रिस्पॉन्सिव, ये कुछ इनपुट्स होते हैं, स्टिमुलाइज होते हैं, जब वो मिलते हैं दैट ऑब्जेक्ट कुड चेंज इट्स स्ट्रक्चर पोस्ट प्रोडक्शन। एक बार प्रोड्यूस हो गया, देन ऑल्सो इट कुड चेंज, तो वो हो गया 4D प्रिंटिंग। मटेरियल्स कौन से इसमें यूज होते हैं, फॉर इंस्टेंस हाइड्रोजेल यूज कर सकते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ठीक है, इस तरीके के मटेरियल्स हम यूज करते हैं। नेक्स्ट अच्छा क्यों, कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, मेन चीज एप्लीकेशन। यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ पूछेगी आपसे, एक तो डेफिनेशन पूछ लेगी, नेक्स्ट आपसे पूछेगी उसकी एप्लीकेशन क्या, बता दो। एप्लीकेशन हमेशा ऑल ऑफ दी अबव होती है, मतलब, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा हर बार, ऐसे नहीं आप आंख बंद करके ऑल ऑफ दी अबव नहीं लगा सकते। कभी हो सकता है यूपीएससी ना दे ऑल ऑफ द अबव, कुछ वे वर्ड दे दे, बहुत ही अलग एप्लीकेशन दे दे, तो वो नहीं होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑल ऑफ दी अबव होता है। तो यहाँ की एप्लीकेशन हम देखते हैं। पहली एप्लीकेशन है मेडिकल में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स बनाना है आपको, ठीक है, किडनी, लिवर, इन सबको प्रिंट किया जा सकता है, लिम्स, बायोटेक्नोलॉजी में, रोबोटिक्स में, ऑटोमोबाइल्स, एरोस्पेस, वेवर, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन थ्रू 4D प्रिंटिंग एज वेल, ठीक है। तो आपको ये बेसिक पता होना चाहिए 4D प्रिंटिंग क्या होता है, इट कुड चेंज इट्स शेप पोस्ट प्रोडक्शन, बस आपको ये कीवर्ड पता होना चाहिए, पोस्ट प्रोडक्शन के बाद भी चेंज हो जाता है। एंड व्हाट आर द मटेरियल्स दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट इज क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज दिस थिंग। सी 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर क्यूबिट्स, ठीक है, क्वांटम टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा था एक, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपके लिए। लेट्स नो व्हाट इज क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या करने की कोशिश करता है, इट सीक्स टू हार्नेस लॉज ऑफ क्वांटम फिजिक्स which describe the behavior of matter and energy at the atomic and subatomic level. नॉर्मल कंडीशन में फिजिक्स लॉ एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन
वो क्लासिकल फिजिक्स लॉज एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन जब हम एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उस कंडीशन में जो क्वांटम फिजिक्स एप्लीकेबल होती है ना, उसको उन लॉज को हार्नेस करके जो हम टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं, उस मैटर के उस बिहेवियर का जो हम यूज़ करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी। दैट कैन बी यूज फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर कम्युनिकेशन पर्पज, इट कुड बी यूज फॉर सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, ठीक है, इट कुड बी यूज फॉर सिमुलेशन पर्पजेज, ठीक है। क्यूबिट्स पे क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, क्यूबिट्स क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी, ठीक है। आते हैं वापस से इस पे ऊपर वाले पे अपने। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्यून्यू लैब्स अंडर द एजेस ऑफ इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डेवलप किया गया है, जो कि एक डिफेंस पर्पस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, ठीक है। आईडेक्स जो प्रोग्राम है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक इनिशिएटिव है बेसिकली। सॉरी, कहाँ गया ठीक है। हाँ, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी मैंने बताया, जो क्वांटम फिजिक्स के लॉज हैं उनको हार्नेस करने की कोशिश करता है, वो टेक्नोलॉजी हम कहते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी, ठीक है। अच्छा, सुपरपोजिशन क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ क्वांटम पार्टिकल टू बी इन मल्टीपल स्टेट्स एट द सेम टाइम अंटिल इट इज मेजर्ड, ठीक है। इंटैंगलमेंट क्या होता है? जहाँ पे टू और मोर क्वांटम पार्टिकल्स इस तरीके से लिंक होते हैं कि उनको इंडिपेंडेंटली मेजर करना इम्पॉसिबल हो जाता है, इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल हो जाता है, उसको बोलते हैं इंटैंगलमेंट, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। अच्छा, क्वांटम कंप्यूटिंग का क्या फ़ायदा है? इट वुड लीड टू फास्टर कम्युनिकेशन स्पीड, बेटर रिजल्ट्स, सुपर कंप्यूटर से भी तेज़ हो जाते हैं, ठीक है। इट्स प्रोसेसिंग इज फास्टर देन सुपर कंप्यूटर्स ऑल्सो, ठीक है। रिसेंटली गूगल हैज़ बीन वर्किंग ऑन क्वांटम कंप्यूटर्स, ठीक है। तो आपको ये बेसिकली पता होना चाहिए। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे थे। इट इज़ अ सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस क्वांटम फिजिक्स टू कंस्ट्रक्ट अ क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल। अब देखिए, कम्युनिकेशन पर्पज के लिए हम यूज़ करते हैं ना इसको, क्वांटम की को मैं बता रहा हूँ। तो क्या फ़ायदा होगा? देखिए, एक नॉर्मल इंक्रिप्शन होता है, दैट कुड ऑल्सो बी ब्रीच्ड, वहाँ पे भी प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है, लेकिन जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ दिस सिक्योर, वेरी सिक्योर, हाईएस्ट ऑफ द सिक्योरिटी इट प्रोवाइड्स फॉर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो मैं आपको बता रहा था ना, जैसे कि एकेडमिशियंस होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, दैट फियर कि देयर कम्युनिकेशन एज इज बीइंग इन्वेडेड, इट इज़ बीइंग ब्रीच्ड, इट इज़ बीइंग टेप्ड, तो उस केस में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। या इंटेलिजेंस एजेंसीज होती, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, हाउ डू दे कम्युनिकेट without a fear of being without fear of being taped or being breached, their privacy being breached by other countries or enemy countries, ठीक है। तो उसके लिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे एप्लीकेबल होता है कि हम इन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं और अपनी नेशनल सिक्योरिटी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ डज आर्मी कम्युनिकेट? आर्मी का कम्युनिकेशन मूवमेंट होना है, अगर उनकी कम्युनिकेशन प्राइवेसी ब्रीच हो रही है तो दैट कुड लीड टू डिजास्टरस अटैक्स ऑल्सो ऑन आर्मीज मूवमेंट विच हैज़ हैपेंड इन पास्ट। तो अगर हम इन सब टेक्नोलॉजीज का यूज़ करेंगे, दैट आर कम्युनिकेशन वुड बिकम सिक्योर, ठीक है। दैट वुड लीड टू बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन द आर्मी, विद इन इंटेलिजेंस एजेंसीज, विद इन अदर पर्पजेज ऑल्सो, ठीक है। तो आपको ये बेसिकली पता होना चाहिए। दो लॉज मैंने आपको बताया, सुपरपोजिशन और इंटैंगलमेंट के, ठीक है। अब बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है आपको बस पता होना चाहिए। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इट इज़ बेसिकली एन इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस क्वांटम फिजिक्स टू कंस्ट्रक्ट अ क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी। ये पहले क्या होता, बिटकॉइन आपने सुन रखा होगा, ठीक है। तो बिटकॉइन माइनिंग में क्या होता है, जब बिटकॉइन माइन किए जाते हैं तो कुछ पजल सॉल्व करनी पड़ती हैं, देन इट लीड्स टू माइनिंग ऑफ बिटकॉइंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये बिटकॉइन माइनिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू बिटकॉइन बाय सॉल्विंग पजल्स। ये पुराना तरीका हो गया, बट अब क्या नया तरीका क्या है? ये प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक, ठीक है। पहले क्या होता था, मैकेनिज्म बिटकॉइन यूजेस टू रेगुलेट क्रिएशन ऑफ ब्लॉक्स थ्रू प्रोसेस ऑफ माइनिंग, ये पहले का जो मैंने आपको बिटकॉइन माइनिंग का बताया। अब क्या है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है? आपको यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो बस ये पूछेगा प्रूफ ऑफ स्टेक इज रिलेटेड टू
विच ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज, तो उसका आंसर हो जाएगा बिटकॉइन माइनिंग। बस आपको इतना पता होना चाहिए, इसके अंदर डीप में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू आर एट द वेरी एज ऑफ योर एग्ज़ाम। आपका एग्ज़ाम 4 दिन बाद है लगभग, तो यू डोंट गो सच डीप इन सच पेरिफेरल टॉपिक्स। यू शुड नो व्हाट इज प्रूफ ऑफ स्टेक, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इट इज़ एन अल्टरनेटिव कंसेंसस मैकेनिज्म दैट डेलीगेट्स कंट्रोल ऑफ द नेटवर्क टू द ओनर्स ऑफ अ गिवन टोकन। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है बस आपको ये पता होना चाहिए कि बेनिफिट इसका ये है कि ये कम एनर्जी कंज्यूम करता है रादर देन प्रूफ ऑफ वर्क। तो प्रूफ ऑफ स्टेक इज अ टर्म रिलेटेड टू बिटकॉइन माइनिंग। ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज्ड, रिसेंटली इथेरियम ने इसको अडॉप्ट किया है, इस वजह से ये न्यूज़ में है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू बिटकॉइन माइनिंग। आपको ये पता होना चाहिए। एनएफटी पे क्वेश्चन लास्ट ईयर यूपीएससी ने पूछा था एक, तो एनएफटी इट इज़ अ डिजिटल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी a drawing, animation, piece of music. ठीक है, it provides a certificate of authenticity created by blockchain technology. NFT be used, it is an NFT basically is an application of blockchain technology. ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने NFT बनाया। NFT क्या करता है, जैसे क्रिएटिव पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, जैसे कि पिक मूवीज़ हो गई, ड्राइंग्स हो गई, म्यूज़िक हो गई, फोटो हो गई। ठीक है, इनके लिए एक सर्टिफिकेट क्रिएट करके देता है। ऑथेंटिसिटी, जैसे आप पहले पेंटिंग आपने एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग खरीदी, ठीक है, तो ऑथेंटिक पेंटिंग आपने खरीदी। अब क्या है, उसी पेंटिंग का हमने एक डिजिटल टोकन क्रिएट किया यूजिंग नॉन फंजिबल टोकन्स। ठीक है, यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एंड नाउ यू कैन ओन दैट पेंटिंग इन डिजिटल वर्जन। ठीक है, दैट इज नॉन फंजिबल टोकन्स दैट यू कैन सेल एंड रीसेल। ठीक है, ये चीज़ हो गई। पहले आपके पास किशोर कुमार की पुरानी कैसेट है, ठीक है, दैट यू ओन इट। नाउ यू कैन ओन किशोर कुमार एक्चुअल म्यूजिक और वीडियो इन अ नॉन फंजिबल टोकन दैट इज मोर सिक्योर। कैसेट कैन गेट डिस्ट्रॉयड, फिजिकल फॉर्म में है दैट इट कुड गेट डिस्ट्रॉयड, बट इफ इट कम्स इन डिजिटल फॉर्म इट वुड रिमेन फॉर सेंचुरीज, it can be preserved, it is easy to store, it is easy to transmit, and it is also difficult to copy it. नॉन फंजिबल टोकन एक यूनिफाइड, एक यूनिक सर्टिफिकेट देता है, सो इट बिकम्स गुड फॉर आर्टिस्ट, इट गुड बिकम्स फॉर क्रिएटर्स कि अपनी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको सिक्योर रख सकते हैं। तो ये हो गया नॉन फंजिबल टोकन्स के बेनिफिट्स, मैंने आपको बता दिए इनडायरेक्टली। ठीक है, नॉन फंजिबल टोकन आप समझ गए। तो नेक्स्ट आता है आपका फेशियल रिकग्निशन सिस्टम। ये रिसेंटली आप हर जगह देखते होंगे, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होता है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी पे यूज़ होता है। ठीक है, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम आपके फेशियल डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है एंड ट्राइज टू रिकग्नाइज द इंडिविजुअल। इंपॉर्टेंट, ये तो आप समझ जाएंगे ना, इसमें आप जब क्वेश्चन आएगा दैट इज़ नॉट मस्ट टू एक्सप्लेन, बट व्हाट इज़ टू एक्सप्लेन, आई विल टेल यू दैट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक। इस टॉपिक में ये डिजी यात्रा जो है ना ऐप, ये आपको डिजी यात्रा इनिशिएटिव है, दैट यू शुड नो। किसकी इनिशिएटिव है, किस मिनिस्ट्री की, दैट आई हैव बीन टेलिंग यू फ्रॉम स्टार्टिंग। कोई इनिशिएटिव होती है, यू शुड नो द मिनिस्ट्री, इट इज़ एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, टू प्रमोट सीमलेस एंड हेजल फ्री एक्सपीरियंस एट एयरपोर्ट, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। ठीक है, इसके अलावा सिक्योरिटी तो हो और कस्टमर्स या पैसेंजर्स को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, सीमलेस एंड हेजल फ्री एक्सपीरियंस हो एयरपोर्ट पे, उसके लिए डिजी यात्रा इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च की। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इट यूजेस फेशियल रिकग्निशन सिस्टम। अब फेशियल रिकग्निशन, यू नो व्हाट इज फेशियल रिकग्निशन सिस्टम, इट इज आइडेंटिफाइंग और कंफर्मिंग एन इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी यूजिंग देयर फेस। ठीक है, फेस का यूज करके हम आइडेंटिफाई करते हैं इंडिविजुअल की आइडेंटिटी। ठीक है, व्हाट इज एक्सटेंडेड रियलिटी? एक्सटेंडेड रियलिटी बेसिकली कलेक्टिव टर्म है जो कि आपको अप्लाई करता है लॉट ऑफ इमर्सिव एक्सपीरियंसेस इन मल्टीपल, जैसे कि AR हो गया, VR हो गया, MR हो गया, ये इन सबको कलेक्टिव टर्म बोलता है एक्सटेंडेड रियलिटी, जहाँ पे आपको एक ऐसे एक्सपीरियंस कराया जाता है दैट यू आर इन वर्चुअल वर्ल्ड। ठीक है, आपको एक वर्चुअल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस कराया जाता है, दैट इज रिलेटेड टू एक्सटेंडेड रियलिटी। मतलब जो आपकी अभी की रियलिटी है फिजिकल वर्ल्ड में, उसको भी एक्सटेंड, दैट गोज बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, दैट एक्सटेंड्स योर रियलिटी।
सो इट इज़ अ कलेक्टिव टर्म अप्लाइड टू इमर्सिव एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अच्छा मैं आपको बता दूं 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था AR और VR में डिफरेंस, ठीक है भाई। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन AR एंड VR, यू शुड नो दिस। AR क्या होता है आपका, AR में आप रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड रहते हैं, बट इट मेक्स योर रियल वर्ल्ड मोर एक्सटेंडेड बाय इनकॉर्पोरेटिंग डिजिटल फीचर्स इन योर रियल वर्ल्ड, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आप स्नैपचैट पे फिल्टर्स यूज करते हैं ना, दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। स्नैपचैट पे डॉग फिल्टर, कैट फिल्टर, ब्ला 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 XYZ फिल्टर्स यूज करते हैं, दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी कंप्लीटली इमर्सिव होता है, उसमें बस डिजिटल एक्सपीरियंस हो, दैट कट्स यू ऑफ फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड। ऑगमेंटेड रियलिटी में यू आर कनेक्टेड टू द रियल वर्ल्ड, बट वर्चुअल रियलिटी में यू आर कट ऑफ फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। वर्चुअल रियलिटी में you need a VR headset that would take you to a virtual world, but in augmented reality you still have access or you still are connected to the actual world. This is the basic difference between AR and VR, and mixed reality is in between them, where user interacts with responsive virtual elements integrated into the real environment, ठीक है। एप्लीकेशन अगेन एक्सटेंडेड रियलिटी के मेडिसिन में, एंटरटेनमेंट में, गेमिंग में, यू नो दैट देर आर गेम्स विच आर डेवलप्ड अराउंड game this extended reality. Recently Jio has launched their Jio Dive something of VR, ठीक है। तो वो क्यों है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, IPL दिखाने के लिए लॉन्च किया गया है। देन शार्पर सिमुलेशन एनालिसिस बेटर कर सकते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग पर्पसेस में हम बेटर एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं। हाउ डू वी टीच space technology to small kids, how do we tell them that they are Jupiter, there is Saturn, we put a VR headset on their heads, ठीक है। they can experience the space sitting in their classroom itself, that is used in education, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन वगैरह मैंने आपको ब्रॉडली बता दिए। कंसर्न्स वगैरह भी हैं, वो सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, ठीक है। और जो भी कंसर्न होंगे दैट इज मच लाइक इसका अगर कंसर्न की बात करें, दैट वुड बी लाइक टू मच इंटेलिजेंस इनटू डिजिटल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड से डिसकनेक्टिविटी, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं कि VR हेडसेट लगा के रोड पे, मतलब यू आर रियली डिसकनेक्टेड टू दी वर्ल्ड, ठीक है। familial connections बिगाड़ रहे हैं because you are always in your virtual world, you are spending, children have been spending their parents credit card on buying virtual tokens, buying virtual gadgets, virtual, which has no significance in real world, ठीक है। तो they are spending money on that also, so that is also a cause of concern. So these are some concerns, that is not much important for prelims examination. next आपका आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID। दैट इज रेडियो फ्रिक्वेंसी, जो ये है आपका एक वायरलेस सिस्टम है, ठीक है। दैट जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है टैग और एक होता है रीडर, ठीक है। टैग आपकी जैसे फॉर इंस्टेंस कार पे एग्जांपल के तौर पे जो आपका फास्ट टैग्स वगैरह होते हैं, दैट इज द टैग, ठीक है। इसकी वर्किंग रेंज आपको पता होनी चाहिए, इट इज़ अराउंड 300 गीगाहर्ट्ज, रेंजिंग फ्रॉम 300 गीगाहर्ट्ज टू एज लो एज 9 किलोहर्ट्ज, ठीक है। और इट डज नॉट रिक्वायर डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट में होने की ज़रूरत नहीं है, एंड इट कैन बी अपडेटेड इन रियल टाइम, ठीक है। वेराज QR कोड में क्या डिफरेंस होता है, इट इज़ अ 2 डायमेंशनल वर्जन ऑफ अ बार कोड दैट कैन बी रेड ईजिली बाई डिजिटल डिवाइस, ठीक है। डिजिटल डिवाइस ये बेसिकली 2 डायमेंशनल वर्जन है बार कोड का, ठीक है। और इसमें आइडियल स्कैनिंग साइज का क्या होता है, 1:10 का होता है, एंड इट रिक्वायर्स लाइन ऑफ साइट। RFID में लाइन ऑफ साइट नहीं चाहिए होती, बट इट रिक्वायर्स लाइन ऑफ साइट। और एक और डिसएडवांटेज होता है, इट इज़ नॉट फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग, वंस स्टोर्ड इट इज स्टोर्ड, डेटा इज स्टोर्ड, दैट विल रिमेन। रियल टाइम में हम उसको अपडेट नहीं कर सकते हैं, whereas in RFID we can update in real time. These are basic differences you should know to eliminate the options. UPSC क्वेश्चन पूछेगा RFID QR कोड के बारे में, then you should know this basic information, you would be able to answer the question, ठीक है भाई। नेक्स्ट है NFC टेक्नोलॉजी, क्या है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। यू मस्ट बी सीइंग एड्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स और बीइंग टैप्ड ऑन द मशीन, और फोन्स बीइंग टैप्ड ऑन द मशीन, पेमेंट इज डन और कनेक्शन हैज बीन डन, फाइल्स हैव बीन सेंट। तो दैट इज नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी है, जैसे पहले ब्लूटूथ आई,
दैट इज ऑल्सो शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी, उसी तरीके से उसी का अपडेटेड वर्जन एक तरीके से, नॉट ब्लूटूथ बट दैट इज ऑल्सो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड दिस इज ऑल्सो वायरलेस कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इट एनेबल्स डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन क्विकली इजीली, सिंगल एक टैप से आप कनेक्ट कर, बस आपने टैप किया एंड इट वुड बी फ्लॉलेस ठीक है। लेकिन इसमें आपको NFC इनेबल्ड डिवाइस होना चाहिए उसके अंदर फॉर फिजिकली टचिंग, और कुछ सेंटीमीटर्स की रेंज में ही ये काम करता है, ठीक है। फ़ायदा क्या है इसका, इट इज़ वेरी क्विक एंड ईजिली, ठीक है। इसमें कुछ आप कनेक्शन बैठाने की जरूरत, बस यू विल हैव टू टैप इट एंड इट इज़ डन, नथिंग दैट गोइंग इनटू सेटिंग्स एंड डूइंग दिस एंड दैट, जस्ट टैप इट एंड यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक जो इंडी स्टैक टॉपिक है। इट इज़ इंडिया ऑल्सो लॉन्च इंडी स्टैक। देखिए इंडी स्टैक टॉपिक क्या है, इंडी स्टैक बेसिकली है टू कंट्रीब्यूट टू, वन सेकेंड, इंडी स्टैक है बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ओपन APIs एंड डिजिटल पब्लिक गुड्स, ठीक है। जो आपकी ओपन APIs हैं, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो होती हैं आपकी, ठीक है, और ऑल द कलेक्टेड टुगेदर फॉर्म्स अ इंडिया स्टैक, ठीक है। तो इसमें आपको बस ये पता होना चाहिए इंडिया स्टैक क्या चीज़ है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ओपन APIs एंड डिजिटल पब्लिक गुड्स। API का मतलब आपको पता होना चाहिए, इट इज़ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो मैंने आपको भी बताया। इसके मल्टीपल एप्लीकेशन, अच्छा इसमें क्या होता है, जैसे कई सारे APIs इकट्ठा हुए, फॉर इंस्टेंस UPI हो गया, आपका कोविन हो गया, डिजी लॉकर हो गया, आरोग्य सेतु हो गया, ई संजीवनी। तो जब ये सब टुगेदर इंडिया स्टैक में टुगेदर आ जाते हैं ना, एक साथ इकट्ठा, इंडिया स्टैक का पर्पस क्या है, इन सारे APIs को, ऑल दीज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को टुगेदर लाना, एक साथ लाना, ठीक है। तो वो अब क्या होगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी, ठीक है। डेटा का हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट करना आसान हो जाएगा, जैसे कि अभी आपके UPI के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं इंडिया स्टैक के। आपको इंडिया स्टैक का बस डेफिनेशन पता होना चाहिए कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ओपन APIs एंड डिजिटल पब्लिक गुड्स, ठीक है। And other important news which have been in news, other important initiatives which have been in news, it is global declaration on future on internet. इसे इंडिया बाहर है, इस इनिशिएटिव मैंने आपको जैसे GPI का बारे में बताया, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ AI, उसमें इंडिया पार्ट था, लेकिन इस डिक्लेरेशन में इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, इट इज़ बेसिकली एक ओपन और फ्री इंटरनेट इस्टेब्लिश करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है, बट इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, यू शुड नो दिस। नेक्स्ट इज बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, जो कि 2001 में साइन हुआ था, बट इट हैज़ बीन इन न्यूज़ बिकॉज साइबर क्राइम्स हैव इंक्रीज ड्यूरिंग कोविड एंड countries have raised their voice around this Budapest Convention on cybercrime, but India has not signed this for purposes which there are purposes that are more important for main's perspective. Why India has not signed? What is India's say on this? But you should know this: Budapest Convention is related to cybercrime, and India has not signed this. You should know this at least 2 points to get to the answer. ठीक है। आपको अभी आपका पर्पस क्या होना चाहिए, शुड कलेक्ट दोज इन्फॉर्मेशन थ्रू विच यू कैन रीच टू द करेक्ट ऑप्शन, बस। बहुत ज़्यादा आपको अभी टाइम कम है, अब यू शुड नॉट कलेक्ट इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन द गोल राइट नाउ, ठीक है। और जैसे ग्लोबल डिक्लेरेशन और फ्यूचर इंटरनेट से भी मैंने बता दिया, इसका पर्पस क्या है, ओपन और फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कराना, ठीक है। इसमें US, EU, UK वगैरह हैं, लेकिन इंडिया इसमें पार्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस। तो इंटरनेट गवर्नेंस जो अभी फोरम हेल्ड हुआ था, वो इंडिया में हेल्ड हुआ था, ठीक है। इट इज़ एसोसिएटेड विद US इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, और ये मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पब्लिक पॉलिसीज रिलेटेड टू इंटरनेट डिस्कस की जाती हैं ठीक है। इंटरनेट गवर्नेंस इज डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी, जिसमें कि हम बेसिकली शेयर्ड यूज़ जो इंटरनेट का है उसके बारे में हम पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, ठीक है। और आपको ये बस पता होना चाहिए कि इंटरनेट को रेगुलेट करने के लिए कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, देयर इज़ नो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इंटरनेट, दिस यू शुड नो। मल्टीपल एक्टर्स हैं दैट गवर्न, मतलब दैट ट्राई टू टेक थिंग्स अराउंड इंटरनेट, ठीक है। बट देर इज़ नॉट एनी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ इन चार्ज ऑफ इंटरनेट, यू शुड नो दिस। कि अब मान लो ऑप्शन UPSC दे दे, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेट गवर्नेंस फोरम रेगुलेट्स
और इज इन चार्ज ऑफ इंटरनेट, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, कोई एंटिटी नहीं है ऐसी, ठीक है। यू शुड नो दिस थिंग। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, निक्सी। तो निक्सी हैज स्टैब्लिश 2 न्यू इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स वेस्ट बंगाल में, ठीक है। IXP जिसको बोलते हैं, इट इज़ अ फिजिकल नेटवर्क एक्सेस पॉइंट थ्रू विच प्राइमरी नेटवर्क प्रोवाइडर्स कनेक्ट द नेटवर्क एंड एक्सचेंज ट्रैफिक, ठीक है। फिर बेसिकली फिजिकल नेटवर्क एक्सेस पॉइंट्स है जहाँ से हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक। और निक्सी की जो बारे में पढ़ना है, इट इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। दैट फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ डोमेस्टिक इंटरनेट ट्रैफिक्स, ठीक है। मतलब बेसिकली जो डोमेस्टिकली जो एक्सचेंज ऑफ ट्रैफिक होता है इंटरनेट का थ्रू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, उसको ये देखता है, ओवरसी करता है, ठीक है, फैसिलिटेट करता है बेसिकली उनके ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू अफ्रीका पल्स। तो फेसबुक ने भारती एयरटेल, जो इंडिया की भारती एयरटेल है, उसके साथ जो टू अफ्रीका पर्ल्स को जो है एक्सपैंड किया है। टू अफ्रीका पर्ल्स है क्या, बेसिकली ये सब सी केबल सिस्टम बिछाने की एक स्कीम है जिसमें कि हम अफ्रीका, एशिया और यूरोप को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट और इट इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सबसी केबल सिस्टम टू प्रोवाइड इंटर कनेक्टिविटी बिटवीन अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप, ठीक है। फायदा क्या होगा, यू नो, बेटर कनेक्टिविटी, दैट वुड बी इट्स बेनिफिट। नेक्स्ट आता है आपका ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंडर आता है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अनाउंस एडिशन ऑफ 3 इंडियन फैक्ट्रीज टू इट्स ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। आपको ये पता होना चाहिए ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, इट इज एसोसिएटेड विद WEF, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ITU's रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम, ठीक है। पहली बात तो ITU क्या है, ITU इज एन स्पेशलाइज UN एजेंसी, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी, जो आप स्पेशलाइज एजेंसीज पढ़ी होंगी 15, उनमें से एक है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क उसको ओवरसी करता है, ठीक है। इट ट्राइज टू अलोकेट ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम, ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स डेवलप करने में हेल्प करता है, एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने होस्ट किया था रिसेंटली ये रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम, जो हमारी इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। डिजी लॉकर क्या है, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ MeitY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ठीक है। इसमें क्या है, डिजी लॉकर में आप अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस हेल्थ रिकॉर्ड वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रोड मैप टू प्रमोट IPR इन टेलीकॉम सेक्टर। इट इज़ ऑल्सो बेसिकली एक स्ट्रैटेजी डेवलप की गई है कि IPR जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको कैसे प्रमोट करें, ठीक है, इन टेलीकॉम सेक्टर। उसके लेकर एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर की गई, दैट इज़ मोर एसेंशियल फॉर, यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स फॉर मेंस ऑल्सो। मेंस में आप लिख सकते हैं कि IPR पे क्वेश्चन आता है, देन यू कैन राइट अबाउट दिस ऑल्सो, ठीक है। तो इसमें रोड मैप में क्या, एक सोवरेन पेटेंट फंड बनाया गया है, ठीक है। देयर इज अ भारत टेक्नोलॉजी बैंक, ठीक है। इसके अलावा एक डिजीकॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बोर्ड भी सेटअप किया गया है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कुछ और टेक्नोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम जल्दी जल्दी देखेंगे। वी आर ट्राइंग टू कीप इट शॉर्ट बिकॉज देर इज लेस टाइम एंड मोर कॉन्सेप्ट्स टू कवर, ठीक है। तो हम जो लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको गो थ्रू कर रहे हैं जल्दी से, सो दैट वी कुड फोकस ऑन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वी कुड कवर फार मोर टॉपिक्स, बिकॉज क्वेश्चन आपका जो आएंगे वो बहुत ही ब्रॉड टॉपिक्स आएंगे। तो वी आर ट्राइंग टू कवर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट आर एसेंशियल इन दिस PT 365 दैट कुड अपीयर इन योर अपकमिंग एग्जाम ऑन 28 मई। FM क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है, नाम से ही है कि अगर हम हमारी जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, अगर हम उनकी फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करें, जो रेडियो वेव्स होती हैं, जो अगर हम उनकी फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करें, देन इट वुड बी नोन एज FM, ठीक है। अगर हम उनके एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करें, देन इट वुड बी नोन एज AM, ठीक है। FM का फायदा क्या होता है, एप्लीकेशन क्या है, एडवांटेज क्या है, बेसिकली रेजिलियंट, इंटरफेरेंस कम हो जाता है FM में, ठीक है। ये मॉड्यूलेशन इनका ईजी होता है, लेकिन ये शॉर्ट रेंज के लिए बेटर होती है। लॉन्ग रेंज के लिए हमारे पास होता है AM को मॉड्यूलेट करते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं हम, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। देन अगेन वेयर इट हैज गॉन, लास्ट फ्यू टॉपिक्स वी आर ट्राइंग टू कवर इट। एम्बेडेड सिम क्या होता है, वी आर
जैसे अभी सिम आपका होता है एजेक्टेबल होता है, देर हैज ट्राई कोशिश कर रहा है, एक कंसल्टेशन पेपर बेसिकली रिलीज़ किया गया था वेयर ई सिम मतलब एम्बेडेड सिम दैट वुड बी एम्बेडेड इन द डिवाइस इटसेल्फ, फिजिकली इंटीग्रेटेड हो। अभी रिमूवेबल होता ना इजीली आपका सिम, ई सिम इज अ फॉर्म फैक्टर दैट इज फिजिकली इंटीग्रेटेड इनटू द डिवाइस मोस्टली बाय सोल्डरिंग टू डिवाइस प्रिंटेड सर्किट, जो पीसीबी बोर्ड्स होते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, उसमें एम्बेडेड होगा ई सिम। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए बस। नेक्स्ट आर्यभट्ट 1। सो आर्यभट्ट 1 अगर आता पूछेगा, यूपीएससी पूछेगा व्हाट डज दैट आर्यभट्ट 1 हैज बीन इन न्यूज, व्हाट इज इट रिलेटेड टू। ठीक है, ऑप्शन होंगे स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, एआई एंड मल्टीपल अदर ऑप्शन। तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ नॉट रिलेटेड टू सैटेलाइट वगैरह से रिलेटेड नहीं है। आर्यभट्ट 1, दिस वन आर्यभट्ट 1 व्हाट वी आर हैविंग ऑन दिस स्क्रीन राइट नाउ, इट इज़ एन एनालॉग चिपसेट। ठीक है, एक प्रोटोटाइप है बेसिकली एनालॉग चिपसेट का, जो कि हम बहुत ही फास्ट है एंड रिक्वायर्स लेसर पावर देन नॉर्मल डिजिटल चिप्स। जो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डिजिटल चिप्स यूज़ करते हैं उससे बहुत ही फास्ट है एंड इट ऑल्सो यूजेज लेसर पावर देन द प्रेजेंट डिजिटल चिप्स विच आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह में, इट वुड बी वेरी मच एसेंशियल, हेल्पफुल एंड एसेंशियल। ठीक है, क्योंकि पावर सेव करेगी एंड इट इज़ ऑल्सो फास्टर। तो आर्यभट्ट 1 इज दिस। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस। वी हैव जस्ट नाउ रेड दैट सर्टेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। तो साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस कुछ सर्टेन ने इशू किए हैं अंडर Cyber security is controlled under which act? You should know that it is Information Technology Act 2000. You should know this also. So कुछ guidelines हैं that are not very much important for right now. We can skip this. We can go to this cryptojacking. Again another term. What is cryptojacking? अच्छा, cryptojacking में क्या होता है? The hacker tries to attack the cyber system and tries to use another computing device, मतलब किसी और का जिसको हैक करना उसके कंप्यूटर डिवाइस को हैक करके माइन करने की कोशिश करता है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, टू यूज समबडी एल्स हैक्ड कंप्यूटिंग डिवाइस टू माइन क्रिप्टो करेंसी इज क्रिप्टो जैकिंग। ठीक है, ये आपको मैंने इजी लैंग्वेज में समझा दिया। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या है। इट इज क्रिप्टो जैकिंग इज अ साइबर अटैक दैट इज हार्ड टू डिटेक्ट वेयर इन कंप्यूटिंग डिवाइस इज हैक्ड बाय द अटैकर एंड इट रिसोर्सेज आर यूज टू इलिसिटली कॉइन माइनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्लू बगिंग। ब्लू बगिंग आपके ब्लूटूथ का यूज करके आपके डिवाइस को हैक किया जाता है। ठीक है, दैट इज नोन एज ब्लू बगिंग, वेयर द मैसेजेस, द फोन कॉल्स, द व्हाट्सएप मैसेजेस कैन बी लिसन टू, can be read and can also send. It can also modify the contact details or the other information within the phone using Bluetooth. ठीक है, तो इसको मिनिमाइज कैसे करते हैं? अपना ब्लूटूथ को ऑफ रखें, जब आपको यूज़ ना हो तो ब्लूटूथ को ऑफ रखें। तो दैट इज़ ब्लू बगिंग। नेम से ही ऑब्वियस है कि समथिंग रिलेटेड टू ब्लूटूथ एंड बगिंग इज समथिंग रिलेटेड टू हैकिंग और समथिंग लाइक दैट। बग मतलब समथिंग रिलेटेड टू वायरस। सो यू कैन रीच थ्रू प्रेजेंस ऑफ माइंड। द सेकंड पी विच आई टोल्ड, पहला पी था पॉजिटिव एटीट्यूड, सेकंड था प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर आपने ब्लू बगिंग नहीं पढ़ा था यहाँ पे कोई बात नहीं, ब्लू बगिंग आता है एग्जाम में, यू थिंक समथिंग बगिंग इज रिलेटेड समथिंग वायरस और हैकिंग, ब्लू इज समथिंग रिलेटेड टू ब्लूटूथ वगैरह एंड यू कैन रीच टू दैट आंसर। तो इस तरीके से प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के आप आंसर कर सकते हैं। हर्मिट इज अगेन अ न्यू स्पाईवेयर जो कि एंड्रॉयड और iOS डिवाइस को हैक करता है। ठीक है, क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था व्हाट डज वाना क्राई मीन्स, पेट। ठीक है, वाना क्राई पे क्वेश्चन पूछा था। इसी तरीके से अभी उस टाइम वाना क्राई न्यूज़ में था, पेगासस न्यूज़ में था, अभी न्यूज़ में क्या है? हर्मिट। तो यू शुड नो व्हाट इज हर्मिट। इट इज अ न्यू स्पाईवेयर विच अफेक्ट्स बोथ एंड्रॉयड एंड iOS डिवाइसेस। मल्टीपल Hermit is a commercial spyware known to be used by governments with victims in Kazakhstan, Italy, North Syria. तो वहाँ की गवर्नमेंट्स ने इस स्पाईवेयर का यूज़ करके बेसिकली कोशिश मतलब हैक करने की कोशिश, स्पाइंग करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आपको हर्मिट पता होना चाहिए। देन सम अदर न्यूज़, परम पोरुल, व्हाट इज दिस? इट इज़ एन स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सॉरी, इट इज़ स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर कंप्यूटर। तो आपको कुछ नाम पता होने चाहिए इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स के बारे में, जैसे परम पोरुल हो गया, इट हैज़ बीन इन न्यूज़ सो यू शुड नो दिस। इट इज़ बेस्ड ऑन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी। इसके अलावा परम शिवाय विच इज़ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर दैट इज असेंबल्ड इंडिजियसली, मतलब इंडिया में ही डेवलप हुआ परम शिवाय। ये आपको नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो व्हाट इज परम शिवाय, यू शुड नो व्हाट इज परम पोरुल। ठीक
ठीक है। परम पोर्टल के मेजॉरिटी ऑफ कंपोनेंट्स हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड एंड असेंबल्ड विद इन द कंट्री, बट परम शिवाय इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर असेंबल्ड, ठीक है, असेंबल्ड इंडिजीनियसली, इंडिया में ही असेंबल किया गया। नेक्स्ट इज ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर, ठीक है। ये कैसे होता है, what is the purpose of this? It is to improve data encryption and to provide improved security for sensitive digital data, ठीक है। आपको डिजिटल डेटा की बेटर सिक्योरिटी के लिए इसका यूज़ करते हैं ट्रू रैंडम नंबर, नाम से ही ऑब्वियस है। तो अगर आप पूछता है व्हाट इज ट्रू रैंडम जनरेटर, इट इज़ रिलेटेड टू इनक्रिप्शन ऑफ डेटा, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड, जैसे पब्लिक की सिक्योरिटी पे, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डज द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर मीन? सो दैट इज public key infrastructure is related to digital security, and it is also related to true random number generator is also related to digital security, ठीक है। लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो इज तिहान। व्हाट इज तिहान? तिहान टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन, ठीक है। ये इंडिया का पहला ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी है, ठीक है। इट इज बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री एंड इट इज़ बीइंग यूज फॉर बोथ ग्राउंड एंड एरियल व्हीकल टेस्टिंग के लिए भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या किस में हेल्प करेगा? आपकी जो स्मार्ट मोबिलिटी टेक्नोलॉजी है, इट इज़ यूज्ड इन दैट, ठीक है। नाम से ही ऑब्वियस देखिए, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन, ठीक है। इट विल प्रोवाइड इंडस्ट्रीज, रिसर्च लैब्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च इन ऑटोनोमस नेविगेशन, ठीक है। नेविगेशन के पर्पज से तिहान, अगर आप पूछता है तिहान के अराउंड क्वेश्चन आता है, यू मस्ट नो इट इज़ रिलेटेड टू नेविगेशन। It is brought by Ministry of Science and Technology. It is used for both ground and air. I am telling you the keywords from where question would be framed, ठीक है। It would be used for both ground and aerial vehicle testing as well. It would help in smart mobility, ठीक है। और ये बेसिक एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर लैब्स, फॉर इंडस्ट्रीज, फॉर एकेडमिया टू कम टुगेदर एंड, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट IT एंड कंप्यूटर। We'll meet next with space and technology.